Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem, The Listener, from class 7, New Oxford Modern English. Students, I will read this poem line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Students, this poem is composed by Walter de la Mare and it is very big poem. It contains 36 lines. So I will first I will do thorough reading and then I will explain line by line in Hindi. So let's start. About the poet Walter de la Mare was born in 1873 and died in 1956. Spent most of his life writing poems and stories, mostly for children. तो यानी कि उन्होंने अपना पूरा लाइफ कहानी लिखने में, कविताओं को लिखने में बिताया, जो कि अक्सर अधिकतर बच्चों के लिए हुआ करती थी. His first book of poems were called Songs of Childhood 1902. तो उनका जो पहला पोएम था जिसको कि सॉन्ग्स ऑफ चाइल्डहुड कहा गया और ये 1902 में पब्लिश हुआ. द मेन थीम ही रोट अबाउट वर रोमांस एंड नेचर. और उनके जो पोएम का जो मेन थीम हुआ करता था वो अक्सर क्या होता था, रोमांस के बारे में होता था या प्रकृति के बारे में होता था. तो चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं. द लिसनर्स. इन मेनी ऑफ वॉल्टर डी ला मारे's पोएम देयर इज़ अ मिस्ट्री विच रीडर्स मस्ट सॉल्व एज बेस्ट दे कैन. तो बहुत सारी जो कविताएं हैं जो ला मारे की, वो रहस्य से भरी हुई होती थी, जिसमें जो रीडर होता था, पाठक होता था, पढ़ने वाला हुआ करता था, उसे उसको सॉल्व करना होता था जितना वो सॉल्व कर सकता था. हिज राइटिंग स्टाइल वॉज सिंपल एंड द मिस्ट्रीज ऑफ मैजिक, द मून लाइट एंड क्वाइटनेस फैसिनेटेड हिज ग्रेटली. तो उनकी जो राइटिंग स्टाइल होती थी बहुत ही सिंपल होती थी और रहस्य का जादू हुआ करता था, चांद की रोशनी हुआ करती थी या शांति जो होती थी, क्वाइटनेस जो होती थी, वो उनको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी, आकर्षित करती थी. These subjects are introduced in most of his poem. और ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं यानी कि मून लाइट, क्वाइटनेस और मिस्ट्रीज ऑफ मैजिक, उनके बहुत सारे अधिकतर पोएम में ये उनका विषय रहा है, सब्जेक्ट रहा है. दिस इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट नोन पोएम्स एंड द रीडर इज़ लेफ्ट विथ मैनी क्वेश्चन. तो जो ये पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं, जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं, उनका बेस्ट पोएम माना जाता है. और हम इस पोएम को पढ़ने के बाद हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन भी बचेंगे कि हम इस क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आई विल डू थॉरो रीडिंग एंड देन आई विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. Is there anybody there? Said the traveler, knocking on the moonlight door. And his horse in the silence champed the grasses of the forest ferny floor. And a bird flew up out of the turret above the traveler's head. And he smote upon the door again a second time. Is there anybody there? He said. But no one descended to the traveler. No head from the leaf-fringed sill leaned over and looked into his grey eyes, where he stood perplexed and still, but only a host of phantom listeners that dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of men, stood thronging the faint moonbeam on the dark stair that goes down to the empty hall, hearkening in an air stirred and shaken by the lonely travel's call. And he felt in his heart their strangeness, their stillness answering his cry, while his horse moved, cropping the dark turf neath the starred and leafy sky. For he suddenly smote on the door even louder and lifted his head. Tell them I came, and no one answered. That I kept my word, he said, never the least still made the listeners, though every word he spake fell echoing through the shadowness of the still house. From the one man left awake, they heard his foot upon the step and the sound of iron on stone, and how the silence surged softly backward when the plunging hoof were gone. Walter de la Mare. तो चलिए पहले हम इसका थोड़ा सा राइमिंग भी देख लेते हैं. तो राइमिंग आप देख सकते हो कि ट्रैवलर से क्या कर रहा है. ट्रैवलर से डोर नहीं हो रहा तो डोर से फ्लोर और हेड से सेड, ट्रैवलर से फिर यहाँ पे सिल से स्टिल. इसी तरीके से आप यहाँ पे कुछ राइमिंग है जो आप निकाल सकते हो. तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं. इज़ देयर एनीबडी देयर?
सेड द ट्रैवलर नॉकिंग ऑन द मूनलाइट डोर। तो क्या वहाँ है कोई, क्या कोई वहाँ है, ट्रैवलर ने कहा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक व्यक्ति है जो कि ये हॉर्स भी है, ऐसा लगता है कि वो कहीं से आया हुआ है और शायद किसी को बुला रहा है या कुछ सर्च कर रहा है। तो ये शायद यही ट्रैवलर है जिसकी बात यहाँ पे हो रही। तो ये जो ट्रैवलर है वो पूछता है कि क्या वहाँ कोई है, और उसने मूनलाइट यानी कि चाँद की रोशनी में दरवाज़ा जो चमक रहा था, मून लिटेड था रोशनी से, उस दरवाजे को उसने खटखटाया और पूछा वहाँ कोई है। एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंस चैम्ड द ग्रासेस ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर। और जो उसका घोड़ा है वो उस फॉरेस्ट के जंगल के फर्नी फ्लोर का मतलब होता है कि जो कवर्ड ग्रास से जो कवर्ड एरिया है, यानी कि जो फॉरेस्ट होता है वो उसमें जो पूरा एरिया होता है वो घास से, छोटे छोटे घासों से कवर्ड होता है जो विदाउट फ्लावर होते हैं, यानी कि घास से कवर्ड है। और जो उसका घोड़ा है, चैम्ड मतलब होता है च्यू, तो उसका जो घोड़ा है, एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंस मतलब उस जो घोड़ा है शांति में च्यू कर रहा है, घास को चबा रहा है, ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर, यानी कि फर्नी फ्लोर यानी कि जो घास से कवर्ड एरिया है, फर्श है फॉरेस्ट का, उसमें वो घास को चबा रहा है। एंड अ बर्ड फ्लू अप आउट ऑफ द टरेट अबव द ट्रैवलर्स हेड। और तभी और एक जो चिड़िया है वो उड़कर आती है आउट ऑफ टरेट, यानी कि जो उसका टावर है, टावर से, यानी कि इमारत का जो ऊपर का हिस्सा होता है जो कर्व एरिया वाला होता है, मीनार जिसको कह सकते हैं, तो उस मीनार से उड़ते हुए ट्रैवलर के सर के पास से उड़ जाती है। एंड द स्मोट अपॉन द डोर अगेन अ सेकेंड टाइम, इज देयर एनीबडी देयर, ही सेड। फिर उसने जो ट्रैवलर था उसने स्मोट मतलब होता है जोर से उसने नॉक करना, जोर से नॉक करना, तो उसने जोर से नॉक किया डोर पे फिर से, दूसरी तरफ, यानी कि दूसरी बार उसने दरवाजे पे फिर से जोर नॉक किया, और फिर उसने पूछा इज़ देयर एनीबडी देयर, इज़, ही सेड, क्या कि कोई वहाँ है कोई। बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रैवलर, लेकिन कोई भी ट्रैवलर के पास नहीं आया। नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्रिंगल सिल, और ना ही कोई सर, लीफ फ्रिंगल मतलब कि जो खिड़की थी, दरवाज़ा था जो पत्तियों से डेकोरेटेड था, यानी कि चारों तरफ जिसपे पत्तियां लटकी हुई थी, उसमें से कोई भी हेड बाहर निकला, यानी कि लीन गया, झांका, लीन्ड ओवर एंड लुक्ड इनटू हिज ग्रे आई। अक्सर होता है ना कि हम लोग जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो या तो हम की होल से या फिर कहीं से विंडो से हम झांकते हैं, लीन करते हैं, तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि नो हेड फ्रॉम लीफ लीन, मतलब कि जो पत्तियों से सजा हुआ जो दरवाज़ा था उससे कोई भी सर झुका नहीं, मतलब वहाँ से किसी ने झांका नहीं, और ना ही उसकी किसी ग्रे आई में किसी ने उसको देखा, यानी कि कोई भी उसके आंसर में नहीं आया देखने की दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। वेयर ही स्टूड परप्लेक्स्ड एंड स्टिल, जहाँ पे वो खड़ा था, स्टूड था, परप्लेक्स मतलब थोड़ा परेशान हुए, क्योंकि उसको अभी भी कोई आंसर नहीं हो रहा था, आंसर नहीं मिल रहा था, तो वो थोड़ा परेशान होके अभी भी चुपचाप वहाँ खड़ा था। बट ओनली अ होस्ट ऑफ फैंथम लिसनर्स दैट ड्वेल्ट इन द लोन हाउस देन, लेकिन बट ओनली, यानी कि वहाँ पे उससे जब उसने दरवाज़ा खटखटाया, दोबारा भी उसने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, कोई भी उस ट्रैवलर के पास नहीं आया, और ना ही किसी ने भी वहाँ से उस खिड़की से, दरवाजे से झांका और उसकी आंखों में देखा। वेयर ही स्टूड, जहाँ पे वो परेशान चुपचाप खड़ा था। बट ओनली अ होस्ट ऑफ फैंथम लिसनर, फैंथम मतलब होता है घोस्ट, लेकिन कुछ जो वहाँ पे घोस्ट थे। अब यहाँ पे जो ये ट्रैवलर है उसे तो ये लग रहा है कि उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा, ये बाहर की बात है। अब जो अंदर हो रहा है, यानी कि घर के अंदर क्या है, तो अब हम वहाँ देखते हैं कि घर के अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बट ओनली अ होस्ट ऑफ फैंथम लिसनर, लेकिन वहाँ पे जो एक घोस्ट का, यानी कि जो भूत या प्रेत का जो झुंड है, सिर्फ वो उसको सुन रहे हैं। दैट ड्वेल्ट इन द लोन हाउस देयर, जो कि उस अकेले घर में हैं, मतलब कि उस अकेले घर में जो फैंथम्स रह रहे हैं वो उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं। That dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of men. Stood यानी कि खड़े हैं, listening सुन रहे हैं, in the quiet of the moonlight यानी कि जो चाँद की रोशनी है, जो शांत चाँद की रोशनी में वो खड़े होके उस ट्रैवलर की वॉइस को सुन रहे हैं, to the voice from the world of men, जो कि इंसानों की दुनिया से आ रहा है। यानी कि जो ये फैंथम है, यानी कि घोस्ट हैं, उस घर में हैं, उनका जो ग्रुप है, यानी कि उनका जो एक झुंड है भूतों का, वो वहाँ खड़ा है और सिर्फ वही उसकी बातों को सुन रहे हैं, यानी कि ट्रैवलर की बातों को सुन रहे हैं। और ड्वेल्ट इन द लोन हाउस देन, और वो पूरे उस अकेले घर में उस चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। स्टूड लिसनिंग इन द क्वाइट ऑफ द मूनलाइट, और अभी भी वो खड़े हैं उस शांत
चाँद की रोशनी में सुन रहे हैं, टू द वाइज फ्रॉम द वर्ल्ड मैन, जो कि इंसानों की दुनिया से आ रहा है। अब जो भूत है, अब ये इंसान तो अकेला, ये जो ट्रैवलर है, इसके अलावा जो भूत रह रहे हैं वहाँ पे, फैंथम रह रहे हैं, वो इस आदमी की अकेली आवाज़ जो कि आदमी की दुनिया से आ रही है वो सुन रहे हैं। स्टूड थ्रॉन्गिंग द फेंट मून बीम ऑन द डार्क स्टेयर दैट गोज डाउन टू द एम्प्टी हॉल। स्टूड थ्रॉन्गिंग, थ्रॉन्गिंग मतलब होता है झुंड बना के घूम देखना, तो वो खड़े हैं। और थ्रॉन्गिंग द फेंट मतलब कि उस फेंट मतलब होता है धीमी, मंद, और मून बीम यानी कि जो चाँद की रोशनी, जो एकदम मंद मंद जो चाँद की रोशनी है, उसमें वो खड़े होके और उसे वो देख रहे हैं इन द डार्क स्टेयर, सीढ़ियों पे खड़े होके। द गोज डाउन टू द एम्प्टी हॉल, जो कि वो मून लाइट उस खाली हॉल में वो जा रही है, यानी कि उस मंद रोशनी में जो कि चाँद की रोशनी है, जो सीढ़ियों से होते हुए उस एम्प्टी हॉल में जा रही है, वहाँ पे वो फैंटम खड़े होके उस लिसनर की उस ट्रैवलर की बात को सुन रहे हैं। हार्कनिंग इन एन एयर स्टीर्ड एंड शेकन बाय द लोनली ट्रैवलर्स कॉल। हार्कनिंग मतलब पुकार, यानी कि उस जो पुकार जो है उसकी, यानी कि जो ट्रैवलर की पुकार है, हवा को हिलाते हुए, सेकंड मतलब हवा को चीरते हुए, हिलाते हुए, उस जो लोनली ट्रैवलर है, यानी कि अकेला जो ट्रैवलर है, उसके कॉल को, उसकी आवाज़ को वो लोग सुन रहे हैं। एंड ही फेल्ट इन हिज हर्ट देयर स्ट्रेंजनेस। अब यहाँ पे जो पहला जो कुछ स्ट्रेंजर था, कुछ लाइन था, उसमें जो ट्रैवलर था वो नॉक करता है और एक बार फिर नॉक करता है और पूछता है कि क्या वहाँ कोई है। उसे लगता है कि उसे कोई देख नहीं रहा है, उसे कोई सुन नहीं रहा है, उसके पास कोई आ नहीं रहा है, कोई भी खिड़की से झांक नहीं रहा है। लेकिन जो अंदर रूम में है, अंदर कमरे का जो है, घर का जो स्थिति है, उसमें क्या है कि जो फैंटम्स हैं उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं। और उस घर में जो अकेले रहते हैं, अभी तक बिल्कुल बिना डिस्टर्ब के रह रहे थे, और अभी भी वो खड़े होके उस मून लाइट में, यानी कि चाँद की रोशनी जो सीढ़ियों से होते हुए उनके घर में जा रही है, उस पे वो झुंड बना के उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं। हार्कनिंग, और उसकी जो आवाज़ है, यानी कि उसकी पुकार है, वो हवा को चीरती हुई, हवा को हिलाते हुए उस ट्रैवलर की कॉल अंदर जा रही है। एंड ही फेल्ट इन हिज हर्ट देयर स्ट्रेंजनेस। अब जो ट्रैवलर है वो क्या फील कर रहा है, मतलब कि जब कोई आवाज़ नहीं आती है लेकिन उसे ऐसा लगता है कि कुछ अजीब, मतलब कुछ स्ट्रेंजनेस है, कुछ अजीब है, मतलब उसे कुछ ऐसा फील होता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हमें कुछ ऐसा एहसास होता है, अंदर से हमें ऐसा फील आता है कि यहाँ पे कुछ ज़रूर गड़बड़ चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। तो एंड ही फेल्ट इन हिज हर्ट देयर स्ट्रेंजर, मतलब कि वो जो ट्रैवलर है उसे कुछ एक अद्भुत आवाज़, अद्भुत चीज़ फील होती है, अद्भुत चीज़ फील होती है। देयर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राई, मतलब उसको ऐसा लगता है कि शांति में भी उसका जो क्राई, मतलब कि वो अंदर से कोई आवाज़ वो सुन रहा है, मतलब उसका कोई आंसर, यानी कि उसे ऐसा लगता है कि अंदर उसकी आवाज़ कोई सुन रहा है, और उस शांति में भी उसे ऐसा लगता है कि उसके जो पुकार है उसकी जवाब कोई दे रहा है। While his horse moved, carping the dark turf neath the starred and leafy sky, और जबकि जो उसका घोड़ा है जब आगे बढ़ रहा है, लीफी स्काई यानी कि जो आसमान जो पत्थरों से भरा हो, यानी कि जो जंगल होता है उसका जो पेड़ होता है इतना बड़ा बड़ा होता है कि जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें सिर्फ पेड़ दिखाई देता है। तो ये राइटर जो ट्रैवलर है वो कह रहा है कि जब उसका घोड़ा है वो मूव कर रहा है, मतलब आगे बढ़ता हुआ, मतलब उस अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है, जो कि ग्रास एंड द सरफेस लेयर ऑफ अर्थ, मतलब कि जो ग्रास, घासों को, और जो फॉरेस्ट में जो टर्फ है, यानी कि जो लेयर है घास का, उसको चीरता हुआ, अंधेरे में चीरता हुआ जब वो आगे बढ़ रहा है, नीथ द स्टेयर्ड एंड लीफी स्काई, यानी कि उस आसमान के नीचे जो कि तारों और पत्तियों से भरा हुआ है। फॉर ही सडनली स्मोट ऑन द डोर इवन, और फिर वो जो ट्रैवलर है एक बार अचानक से फिर से वो दरवाजे पे नॉक करता है जोर से, इवन लाउडर, मतलब कि इससे जितना भी उसने पहले किया तो उससे भी ज़्यादा तेज, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और अपना सर उठाता है। टेल देम आई केम, मतलब उसे बताना, अब वो ट्रैवलर जब उस अंदर से आवाज़ नहीं आती है तो कहता है कि टेल देम, मतलब उन्हें बता देना, आई केम, मैं आया था, एंड नो वन आंसर, और किसी ने मेरा उत्तर नहीं दिया। दैट आई केप्ट माई वर्ड ही सेड, और वह कहता है कि मैंने अपना प्रॉमिस रखा, मतलब कि मैंने कहा था कि मैं आऊँगा तो मैं आया। नेवर द लीस्ट स्टिल मेड द लिसनर, लेकिन फिर भी कोई भी, मतलब एक छोटा सा भी वहाँ कुछ भी हिलता नहीं, मतलब कोई उस लिसनर्स को, यानी कि जो वहाँ उसकी आवाज़ सुन रही थी, वहाँ से कोई मूवमेंट नहीं होता है। दो एवरी वर्ड ही स्पीक, मतलब कि यद्यपि कि वो जब वो कहता है कि बता देना कि मैं आया था और मैंने अपना प्रॉमिस रखा, कोई भी वहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है, वहाँ लिसनर के जो सुन रहा था उसकी तरफ से कोई
कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। यद्यपि कि एवरी वर्ड ही स्पे, मतलब कि यद्यपि कि जो वो जो बोल रहा था, जो भी एक साउंड कर रहा था, जो भी वो कह रहा था, फेल गोइंग थ्रू हिज शैडोइनेस ऑफ द स्टिल हाउस, मतलब उस फेल्ट कोई, मतलब कि उस वो अपनी ही आवाज़ इको करती है, मतलब कि उसकी खुद की आवाज़ वापस आती, मतलब उस परछाई में, उस शांत घर से वापस आती हुई उसकी आवाज़ खुद उसे फील होती है। फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक, मतलब कि जो एक आदमी जो कि वो अवेक है, यानी कि वो ट्रैवलर, मतलब कि वो ट्रैवलर को अपनी ही आवाज़ वापस सुनाई देती है इको करते हुए, जो कि उसके घर से टकरा कर वापस आती है। ए दे हर्ड हिज फुट अपॉन द स्टर। अब उसके बाद वो क्या करता है, जो ट्रैवलर सारी बात कह देता है, जब उससे कोई आंसर नहीं होता है तो दे हर्ड हिज फुट, अब वो उस यानी कि जो लिसनर्स हैं, यानी कि जो कमरे में फैंटम्स हैं, उन्हें उनके पैरों की, उस ट्रैवलर के पैरों की आवाज़, जो कि उस स्टेप मतलब होता है जो उस घोड़े पे जो लोहे का लगा होता है जिस पे चढ़ के, यहाँ पे देख सकते हो चढ़ते हैं, तो उस पे जब वो अपने पैर रखता है तो उसकी आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। एंड द साउंड ऑफ आयरन ऑन अ स्टोन, और उस नाल की आवाज़ सुनाई देती है जो पैर के घोड़े के पैरों में लगा होता है, जो पत्थर से टकराती है, वो आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। एंड हाउ द साइलेंस सर्ज सॉफ्टली बैकवर्ड, और धीरे धीरे जो शांति है, सर्ज सॉफ्टली बैकवर्ड, मतलब कि जो आवाज़ थी धीरे धीरे शांति में बैकवर्ड यानी कि वापस होते हुए जाती है, यानी कि बैकवर्ड यानी कि वापस चली जाती है। व्हेन द प्लंगिंग हूफ वर गॉन, और जब हूफ मतलब कि जो घोड़ों की टप टप की आवाज़ थी, अब धीरे धीरे वो वापस चला जाता है, यानी कि जो ट्रैवलर है वो फिर से वापस चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर